Students, good morning everyone. How are you all? Hope all of you are fine and staying at home and enjoying your holidays. Along with your holidays, I think all the students are studying regularly at home on the regular basis. Today I welcome you all to the grammar session of standard 4th from your ACE grammar, that is ACE grammar from your ACE grammar book. Today I Shama Khan is going to teach you chapter number 8, that is adjectives. Before we start this lesson, we have to recall all the lessons which we have learnt earlier. Which lessons we have learnt earlier? Yes, the first chapter was nouns. So let's recall what is a noun. So noun are name of person, place, animal or thing. In that second chapter was there related to common noun or proper noun. किसे कहा जाता है common noun? When we talk about any person, place, animal or thing in common, that is called a common noun. Example can be boy, girl, like that, table, chair, so on. Next one is there proper noun. So what are proper nouns? Proper nouns are the name of any specific person, place, animal or things. Example can be there Amir Khan is there, then specific character is there, Narendra Modi is there, India is the name of a country, the name of specific river is there, the Sabarmati river we can say. Like this, so many things which give name to the specific thing, that is called a proper noun. उसके बाद हमने सीखा था कि collective nouns. तो what are collective nouns? When we talk about the name of person, place, animal or thing, but that are in group. जब वो सारे एक ग्रुप में होते हैं and we are counting them as one, they are called collective nouns. Example तो आपको पता ही होंगे, a bunch of keys, bundle of sticks, galaxy of stars and so on. तो ये आप लेसन नंबर 3 अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, then you will come to know. And I want to recall everyone कि whenever you are watching the videos, you watch the videos very carefully. आप सारे videos अच्छे से देखिए. Every time whenever I am telling तो videos आप देखेंगे, then only you will come to know about the lesson. उसमें क्या दिया गया है, what is given. So you try to see the videos on regular basis. That time no difficulty will be there in grammar. Only writing part is not enough. आपको उसका animated visual भी देखना है और जो video recorded है that also you have to see. So all the topic will be very clear to you. Then the fourth chapter was there countable nouns and uncountable nouns. In that the things which we can count are called countables noun और जिसे हम count नहीं कर सकते, they are called uncountable nouns. Next topic was so easy, that was singular and plural nouns. When we talk about any one thing, एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, that is a singular noun. And when we talk about many things, that is plural noun. Next one was their gender. So when we change the gender, it is change the gender is what? When we talk about masculine male gender, it is called masculine gender, and when we talk about lady, that is feminine gender. So yeah, these all lessons were related to noun. And next one was their possessive noun. So possessive noun which we relate to about their things, जो उसकी चीज़ के बारे में, पोसेशन के बारे में बताता है, that are called possessive nouns. So all these chapters I think so were very clear to you. If you find any kind of difficulty,
आपको कहीं भी कहीं डिफ़िकल्टी लगे तो अगेन you go in the YouTube channel and again you see the videos again and again for better understanding. तो आपको उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी. Today which chapter we are going to study? Chapter number 8 adjectives. तो चैप्टर नंबर 8 एडजेक्टिव्स स्टडी करने से पहले आप ये जानना चाहेंगे एडजेक्टिव्स उसका मतलब क्या होता है. तो एडजेक्टिव मीन्स इट टॉक्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन. तो नाउन तो हमने सीख लिया है. नाउन व्हेन वी टॉक अबाउट द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, दैट इज़ कॉल्ड ए नाउन. अब प्रोनाउन आपने नहीं सीखा है तो प्रोनाउन हम डिटेल में जैसे आगे बढ़ेंगे दैट टाइम वी विल लर्न. सो लेट्स प्रोसीड विद द चैप्टर. नाउ अगर लेसन को अच्छे से समझना है तो फर्स्ट वी हैव टू रीड द सेंटेंसेस. नाउ हियर द फर्स्ट रीड दिस सेंटेंसेस. द फर्स्ट सेंटेंस इज रीना हैज़ अ रेड अम्ब्रेला. तो यहाँ पे रेड इट इज़ गिवन इन रेड कलर. तो उस पर आपको ध्यान देना है. इट इज़ इन रेड कलर. देयर आर 4 cushions on the sofas. There are 4 cushions on the sofas. Next one, the doll is pretty. The doll is pretty. तो जो बोल्ड में है, कलर्ड में है, वहाँ पे आपको ध्यान देना है. Then you will understand it very nicely. अब फर्स्ट सेंटेंस क्या है? फर्स्ट सेंटेंस इज देयर रीना हैज़ ए रेड अम्ब्रेला. तो यहाँ पे क्या किया गया है? इट इज़ स्पेसिफाइड दैट द अम्ब्रेला विच इज़ अ नाउन, उसको उसके बारे में बताया गया है कि द अम्ब्रेला इज़ रेड. अम्ब्रेला का कलर क्या है? रेड. सो अम्ब्रेला इट इज़ रेड इन कलर. इट टॉक्स अबाउट अम्ब्रेला विच इज़ रेड इन कलर. सो ये मैंने क्या बताया था? एडजेक्टिव्स आर व्हाट? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब ए नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है. तो यहाँ पे अम्ब्रेला को डिस्क्राइब किया गया है कि अम्ब्रेला का कलर कैसा है. तो विच कलर इट इज़ देयर? रेड. तो उसकी क्वालिटी दिखाता है कि अम्ब्रेला इज़ ऑफ रेड कलर. What was the second sentence? The second sentence was there are 4 cushions on the sofas. ये आपको दिखाई दे रहा है सोफ़ा, हमारे घर पे होता ही है. तो हियर इट इज़ देयर नंबर 1 2 3 4. 4 सोफ़ा कुशन्स सोफ़े पे रखे गए हैं. तो ये कुशन्स क्या दिखा रहा है कि कुशन्स, नंबर ऑफ कुशन्स, कितने नंबर है. तो इट इज़ एडजेक्टिव ऑफ नंबर. तो 4 कुशन्स आर देयर. तो वो डिस्क्राइब कर रहा है कि नंबर ऑफ कुशन्स आर हाउ मैनी, कितने हैं. सो इट इज़ एडजेक्टिव ऑफ नंबर. वो कुशन्स को डिस्क्राइब कर रहा है. नेक्स्ट वन इज़ देयर द डॉल इज़ प्रिटी. देखा कितनी सुंदर डॉल है. सो नाइस, सो प्रिटी इट इज़ देयर. तो ये कहाँ कहा गया है? द डॉल इज़ प्रिटी. तो डॉल कैसी है? डॉल इज़ ए नाउन. क्या डिस्क्राइब किया गया है? डॉल की क्वालिटी को. सो इट इज़ अ एडजेक्टिव कि हाउ ब्यूटीफुल द डॉल लुक्स. सो डॉल इट इज़ प्रिटी. सो दैट इज़ द एडजेक्टिव. वो उसके बारे में बता रहा है कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द डॉल. Next one, here in these sentences the words in bold describe the nouns umbrella, cushions, doll. तो यहाँ पे सारे वर्ड्स जो है umbrella, cushions, doll, ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? Yes, it tells about their quality. That's why these words are known as adjectives. इसलिए जो वर्ड्स है रेड, फोर, प्रिटी, ऑल दिस आर एडजेक्टिव्स. जो भी वर्ड्स है रेड, अम्ब्रेला कैसा था? रेड. कुशन्स कितने थे? 4.
डॉल कैसी थी? प्रिटी. सो ऑल दिस दे डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द नाउन. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव. नाउ हियर इट इज़ देयर. एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन. तो नाउन का तो हमने सीख लिया कि इट डिस्क्राइब्स अ नाउन. अब प्रोनाउन क्या होता है? डू यू नो? यस. तो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. जो प्रोनाउन होता है दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. एग्जाम्पल वी कैन टेक माया इज़ ए गर्ल. तो सी इज़ अ प्रिटी गर्ल. तो शी क्या हुआ? सी उस प्रोनाउन है. तो सी इज़ अ प्रिटी गर्ल. तो आया ना प्रोनाउन? यस. तो द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स दे आर कॉल्ड प्रोनाउंस. तो एडजेक्टिव प्रोनाउन की क्वालिटी को भी डिस्क्राइब कर सकता है. सो हम थोड़े और एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रोनाउन के. तो प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं? विच आर द प्रोनाउंस? आई, यू, मी, वी, दे, ही, शी, इट एंड सो ऑन एक्सेट्रा. बहुत सारे हो सकते हैं. ये तो हमने थोड़े एग्जांपल्स लिए हैं. कौन कौन से प्रोनाउंस है? आई, यू, मी, वी, दे, ही, शी, इट एक्सेट्रा. तो ऐसे बहुत सारे हैं. तो अगेन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि what are adjectives? Adjectives are the words that describe a noun or a pronoun. वो उसके बारे में और बताता है. That tell us more about people, places और things. उसके बारे में डिटेल में हमें बताता है. So that is called an adjective. Now let's see again further so that you can understand it very nicely कि एडजेक्टिव्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे होगा. तो एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड बिफोर ए नाउन. नाउन का तो आपको समझ में आ ही गया होगा. व्हाट इज़ अ नाउन? नाउन इज़ ए वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग. क्लियर? एक बार और. Nouns are the words that tell about people, place, animal or thing. Let's see the sentence. My brother and I take a long walk. तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव समझना है कि नाउन के आगे कैसे यूज़ होता है. So here it is there. My brother and I take a long walk. तो यहाँ पे जो रेड में है उस पे आपको ध्यान देना है. योर कंसंट्रेशन शुड बी हियर. लॉन्ग. मेहर हैज़ एन एक्सीलेंट ड्रेस. मेहर हैज़ एन एक्सीलेंट ड्रेस. एक्सीलेंट. इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ द ड्रेस. नेक्स्ट वन. गौरव इज़ ए गिफ्टेड म्यूजिशियन. गौरव इज़ ए गिफ्टेड म्यूजिशियन. अब हम उसे अच्छे से समझ लेते हैं. ऑल दिस सेंटेंसेस इन डिटेल. नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज देयर. माई ब्रदर एंड आई टेक अ लॉन्ग वॉक. नाउ सी द डिस्टेंस ओवर हियर. हाउ द डिस्टेंस इज देयर. इतना डिस्टेंस है, इतना लंबा सफ़र है. सो दैट डिस्क्राइब्स कि हाउ मच वॉक इज़ देयर. कितना चलना है. तो दिस डिस्क्राइब्स द क्वालिटी हाउ मच वॉकिंग विल बी देयर. सो इट डिस्क्राइब्स दैट हाउ मच लॉन्ग वॉक माई ब्रदर एंड आई विल टेक. सो वॉक के पहले जो नाउन है उसके पहले यूज़ हुआ लॉन्ग एडजेक्टिव. नेक्स्ट वन. मेहर हैज़ एन एक्सीलेंट ड्रेस. अब यह ड्रेस देख लो. हाउ ब्यूटीफुल द ड्रेस इज़. ब्लैक सभी गर्ल्स का फेवरेट होता है. सी द ड्रेस. कितना सुंदर है. हाउ नाइस इट इज़. तो इट इज़ एन एलिगेंट.
कितना अच्छा, gorgeous, beautiful also we can say. So it describes the quality of the noun dress. तो noun है, dress है, उसके पहले यूज़ हो गया है, before यानी पहले. तो मेहर हैज़ एन excellent dress. कैसा ड्रेस है? Elegant. Next one. गौरव इज़ अ गिफ्टेड म्यूजिशियन. तो जिसे गिफ्टेड मतलब क्या, कि उसे किसी से सिखाया नहीं, इट इज़ गॉड गिफ्टेड, गॉड के द्वारा वो दिया गया है. तो गौरव इज़ एन गिफ्टेड म्यूजिशियन. तो किसको मॉडिफाई कर रहा है? म्यूजिशियन को. कैसा म्यूजिशियन है? गिफ्टेड, यानी उसे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ही हैज़ लर्नड. सो गौरव इज़ ए गिफ्टेड म्यूजिशियन. तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड बिफोर ए नाउन. तो जो नाउन थे वॉक, उसके आगे क्या लगा? लॉन्ग. ड्रेस एलिगेंट, उसके आगे क्या लगा? ड्रेस के आगे क्या लगा? एलिगेंट. और म्यूजिशियन के आगे गिफ्टेड. अब थोड़ा और समझ लेते हैं एडजेक्टिव्स और कहाँ पे यूज़ हो सकता है. Adjectives can also be used after a verb. So what is a verb? Verb are the words that tell about the action. Action words. हम जो भी कुछ काम करते हैं तो where it is used. Action words होते हैं और helping verbs भी होते हैं. is, am, are, was, were. ये सारे helping verbs है. और जो भी action words है, sit, stand, walk, dance, talk, speak, sleep, all these are action words. तो दोनों के आगे helping verbs जो है, helping verbs कौन से है? is, am, are, was, were, has. तो all these are helping verbs. और main verbs कौन कौन से है? sit, stand, dance, talk, walk, jump, all these are main verbs. तो adjectives can also be used after a verb. के verb के बाद भी हम adjectives use कर सकते हैं. Let's see the example so that you can understand it very nicely. First sentence, this is a delicious watermelon. तो यहाँ पे watermelon ये noun है, उसके पहले delicious यूज़ हो गया है. तो अब हम वर्ब के बारे में समझते हैं. अब ये सेंटेंस को हम थोड़ा चेंज कर देंगे. दिस वाटरमेलन इज़ डिलीशियस. तो यहाँ पे जो ये वर्ब है इज़, उसके बाद यूज़ हुआ है ना डिलीशियस, जो एडजेक्टिव है. तो दिस वाटरमेलन इज़ डिलीशियस. तो हम दोनों तरह यूज़ कर सकते हैं, नाउन के पहले भी और वर्ब के बाद भी. तो डिलीशियस इज़ यूज्ड इन बोथ द प्लेसेस. हम नाउन के पहले भी यूज़ कर सकते हैं और वर्ब के बाद भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, लीला हैज़ अ हैवी बुक. लीला हैज़ अ हैवी बुक. तो लीला, हाउ इज़ द बुक? हैवी. तो ये नाउन है, नाउन के पहले यूज़ हुआ है. अब नेक्स्ट देख लेते हैं. लीला's book is heavy. तो here the verb is there is. तो इसके बाद हुआ ना यूज़ heavy. तो लीला's book is heavy. It is a hot day. तो ना noun is there day, उसके पहले यूज़ हुआ hot adjective. अब verb के बाद see. The day is hot. तो यहाँ पे verb है is, उसके बाद we have used hot. अच्छे से एक बार और समझ लेते हैं. द फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज़ अ डिलीशियस वाटरमेलन. कितना स्वादिष्ट लगता है, वाटरी वाटरी लगता है ना. तो दिस वाटरमेलन, दिस इज़ अ डिलीशियस वाटरमेलन. तो एडजेक्टिव डिलीशियस यहाँ पे नाउन के पहले यूज़ हुआ है. तो हम उसे दूसरी तरह भी वर्ब के बाद भी यूज़ कर सकते हैं. कैसे? दिस वाटरमेलन इज़ डिलीशियस. कि ये वाटरमेलन बहुत डिलीशियस
है। सी द कलर, हाउ ब्राइट एंड कलरफुल इट इज़। सो दिस वाटरमेलन इज़ डिलीशियस। नेक्स्ट वन, सेकेंड सेंटेंस क्या था? लीला हैज़ अ हैवी बुक। तो अब ये बुक कितनी हैवी है? बहुत है ना हैवी। तो हमने पहले सेंटेंस में क्या यूज़ किया? हैवी बुक। जो नाउन है बुक, उसके पहले हमने हैवी एडजेक्टिव वी हैव यूज्ड। अब इसको हम वर्ब के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। लीलाज बुक इज़ वेरी हैवी। लीला की बुक कितनी हैवी है, तो इसके बाद हमने यूज़ किया लीलाज बुक इज़ वेरी हैवी। नेक्स्ट वन, इट इज़ ए हॉट डे। कितना पसीना आ रहा है? यस। तो डे कैसा है? हॉट। हाउ इज़ द डे? वेरी हॉट। सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। सो हाउ इज़ द डे? हॉट। इट इज़ ए हॉट डे। तो हमने यहाँ पे डे जो नाउन है उसके पहले एडजेक्टिव हॉट यूज़ किया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में वर्ब के बाद कैसे यूज़ होता है वो भी देख लेते हैं। द डे इज़ हॉट। दिन कैसा है? बहुत गर्म। सी, इस पर्सन को कितना पसीना आ रहा है गर्मी की वजह से। सो द डे इज़ हॉट। सो इन बोथ द वेज हम दोनों तरह यूज़ कर सकते हैं एडजेक्टिव्स। कहाँ कहाँ पे? वी कैन यूज़ इट बिफोर अ नाउन। हम नाउन के पहले भी यूज़ कर सकते हैं और वर्ब के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों प्लेसेस में हम वर्ब इज एडजेक्टिव्स इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार और समझ लेते हैं कि व्हाट आर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन। उसके बारे में बताता है, नाउन के बारे में या प्रोनाउन उसकी क्वालिटी के बारे में इट इज़ शोइंग। नाउ लेट्स सी वन एक्टिविटी सो दैट आपको थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझ में आए। नाउ हियर इट इज़ देयर, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडजेक्टिव्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो। अब इसमें क्या है? हैप्पी एडजेक्टिव, रेनी वो भी एडजेक्टिव है, स्मॉल एडजेक्टिव, लाउड इट इज़ एडजेक्टिव, ड्राई एडजेक्टिव। तो ये सारे एडजेक्टिव्स हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? नाउन के पहले या आफ्टर ए वर्ब। देख लेते हैं। फर्स्ट वन, रजत वेंट फॉर ए वॉक ऑन ए डैश डे। तो दिन कैसा है? रेनी। तो इट इज़ एन एडजेक्टिव, इट इज़ यूज बिफोर ए नाउन। यहाँ पे नाउन के पहले यूज़ हुआ है। सेकेंड वन, द ट्री नियर माई हाउस इज़ ड्राई। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? इट इज़ यूज्ड आफ्टर ए वर्ब। इज़ वर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव ड्राई यूज़ हुआ है। तो द ट्री नियर माई हाउस इज़ ड्राई। ओके। नेक्स्ट वन, रैबिट्स आर डैश एनिमल्स। रैबिट्स आर डैश एनिमल्स। तो यहाँ पे एनिमल दैट इज़ अ नाउन। तो नाउन के पहले यूज़ हुआ है। कैसे रैबिट एनिमल होते हैं? स्मॉल। इट इज़ द एडजेक्टिव। तो रैबिट्स आर स्मॉल एनिमल, इट इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन। नेक्स्ट वन, अमीना इज़ डैश बिकॉज सी हैज़ वॉन द रेस। तो यहाँ पे भी वर्ब है इज़। तो एडजेक्टिव हैप्पी कहाँ पे यूज़ हुआ है? वर्ब के बाद। इट इज़ यूज्ड आफ्टर द verb. Amina is happy because she has won the race. Next one, Ravi could not study because the music was too dash. तो क्या आएगा? loud. तो यहाँ पे भी verb was उसके बाद यूज़ हुआ है। Ravi could not study because the music was too loud. Understood students? आपको समझ में आ गया कि वेयर वी आर यूजिंग एडजेक्टिव्स। इट कैन बी यूज्ड बिफोर द नाउन और आफ्टर द वर्ब।
Now let's see an animated video so that you can understand these adjectives very nicely and in detail. So let's see the animated video which is based on adjectives. Elvis, look at this starry night. Shining moon, twinkling stars, and glittering water. I am just amazed. Yes, this night is really amazing. And you have described it so well by using perfect adjectives. Adjectives? Please tell me more about them. Yes, Jimmy. Look at these examples. Starry night, shining moon, twinkling stars, glittering water. In each of these examples, the highlighted word describes some or the other quality of different things. Here the words starry, shining, twinkling, and glittering describe specific nouns. In these phrases, starry describes the noun night. Shining describes the noun moon. Twinkling describes the noun stars. And glittering describes the noun water. All such describing words are known as adjectives. Thus, words that describe the quality of a person, animal, place or thing are called adjectives. For example, tall man. Here, tall describes a man, that is, a person. Brown dog. Here, brown describes a dog, that is, an animal. Small bridge. Here, small describes bridge, that is, a place. Conical trees. Here, conical describes the trees, that is, a thing. Words for numbers are also called adjectives. For example, 2 benches. In this phrase, the word two describes how many benches. Thus, we can say that the words that are used to describe quality, color, size, shape, and number are called as adjectives. An adjective also describes how someone or something looks, tastes, feels, smells, or sounds like. For example, cute dog. Here, cute describes the looks of dog. Sweet fruit. Here, sweet describes the taste of a fruit. Cold water. Here, cold describes the feel of the water. Fragrant breeze. Here, fragrant describes the smell of the breeze. Rustling trees. Here, rustling describes the sound of the trees. Wow, Elvis, that was so interesting. I can now make use of correct adjectives to describe the words. I can now tell my friends too that the words that describe the quality of a person, animal, place, or thing are called adjectives. Wow, that's great! You're smart and intelligent, Jimmy.